भारत धर्म की पवित्र भूमि है। हर युग में भारत में महान गुरु और रहस्यवादी, दृष्टा और साधक हुए हैं, जिन्होंने मानवता को अंदर शांति और बाहर सद्भाव खोजने का मार्ग दिखाया है। दिल्ली में पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भगवान बुद्ध का इन पथ प्रदर्शकों में अद्वितीय स्थान है। The International Buddhist Confederation, or IBC in short, must be commended for organizing this two-way conference. The themes chosen for the summit, the role of Buddha Dhamma in strengthening Asia, is age after age, it is timely. Over these 2 days, you monks, scholars, and practitioners will engage in dialogues and discussions about the Buddha Dhamma and its role in contemporary society. India is the blessed land of Dharma. Here, in every age, there have been great masters and mystics, seers and seekers who have shown humankind a way to find peace inside and harmony outside. The Buddha holds a unique place among these pathfinders. The enlightenment of Siddhartha Gautama under the Bodhi tree in Buddha Gaya is an event unparalleled in history. राष्ट्रपति ने कहा कि महात्मा बुद्ध ने न केवल मानव मन के कामकाज के बारे में अतुलनीय समृद्ध अंतर्दृष्टि प्राप्त की, बल्कि उन्होंने बहुजन सखाय बहुजन हिताय की भावना से सभी लोगों के साथ इसे साझा किया। He not only attended incomparably rich insights into the working of the human mind, he also chose to share them with all people in the spirit of Bahujana Sukhayo, Bahujana Hitayo Cho, for the welfare of the masses. For 45 years after his enlightenment, he went from place to place preaching the Dharma. He took his message to a variety of audiences, kings and artisans, men and women, monks and lay people. To spiritually involved people, he explained the causes and conditions that shape human experience. To ordinary people, he taught how to lead a moral life. राष्ट्रपति ने कहा, बुद्ध की शिक्षाओं का संरक्षण हम सभी के लिए महान सामूहिक प्रयास रहा है। उन्होंने कहा कि बौद्ध संघ के बारे में सच है कि इसका केंद्र हर जगह है और परिधि कहीं नहीं है। The spread of Dhamma over all expanding geographical area created a community, a larger Sangha. In essence, India, the land of the Buddha's enlightenment, is at its center. But what is said about God is also true about this larger Buddhist Sangha, that its center is in everywhere and circumference nowhere. This is all the more true because apart from Southern Buddhism and Northern Buddhism, it has also been spreading in the only remaining direction in the last 2 centuries, and it has come to known as Western Buddhism. राष्ट्रपति ने कहा कि आज जब दुनिया कई मोर्चों पर अस्तित्व के संकट का सामना कर रही है, न केवल संघर्ष बल्कि जलवायु संकट भी है, ऐसे में बौद्ध समुदाय के पास मानव जाति को देने के लिए बहुत कुछ है। When the world today is facing an existential crisis on many fronts, not only strife but also the climate crisis, your large community has much to offer
to humankind. The various schools of Buddhism show the world how to counter narrow sectarianism. Their central message remains focused on peace and non-violence. If one word can capture the Buddha Dhamma, it has to be karuna or passion, which is what the world needs today. As the theme of the summit has captured it well, we need to discuss the role of Buddha Dhamma in strengthening Asia. Indeed, we need to expand the discussion to see how Buddha Dharma can bring peace, real peace, to Asia and to the world, a peace free from not only physical violence, but also from all forms of greed and hatred. The two mental forces at the root of all our miseries, according to the Buddha. दिल्ली में आयोजित इस शिखर सम्मेलन का विषय है एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धम्म की भूमिका। इस दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से बौद्ध धर्म को सम्मानित करते हुए 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के 3 प्रकाशन जस्टिस फॉर नेशन, प्रिज्म इन इंडिया और लीगल एंड थ्रू लॉ स्कूल जारी किए। इस मौके पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी मौजूद थे। I congratulate everyone who has contributed directly or by way of helping to the publications released today. I am happy to note that the Supreme Court of India has been organizing very purposeful activities and events to commemorate the 75th year of its founding. Holding of Lok Adalats at the Supreme Court and organizing a conference of district level judicial officers are but just 2 examples of addressing the ground realities related to our justice delivery system. देश के नए दंड कानून हर एक नागरिक के लिए सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने की हमारे देश की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान की ओर से भारत में कार्यरत दूतावासों के अधिकारियों और पदाधिकारियों के लिए नई अधिनियमित दंड विधियों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम में ये बात कही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस प्रकार के व्यापक कानूनी ढांचे को लागू करना भारत की दांडिक न्याय प्रणाली के विकास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम दूतावास के अधिकारियों के लिए भारतीय दंड विधि में प्रक्रियात्मक और वास्तविक परिवर्तनों के बारे में जानकारी हासिल करने का एक अवसर है। भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र तो है सी, लेकिन हमारी डाइवर्सिटी, हमारी विविधताएं हैं, भौगोलिक विविधताएं, भाषा की विविधताएं, धर्म की विविधताएं, हमारी विभिन्न क्षेत्रों में बहुत विविधताएं हैं। उन विविधताओं को एक साथ हम मिलकर कानून के राज के रूप में, जब दुनिया के डेमोक्रेसी के रूप में सबसे बड़े देश हैं, उसी तरीके से दुनिया के अंदर भारत का संविधान, जिसमें सबको न्याय, सबको बंधुता, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश है जहां पर कोई भी संविधान में परिवर्तन करना हो तो संसद में 2/3 मेजोरिटी से ही परिवर्तन हो सकता है, और दोनों सदनों के अंदर, और उसकी भी समीक्षा न्यायालय के अंदर है।
ये हमारे न्यायाधीशों की भूमिका है। इसलिए न्याय को हमने सर्वोपरि माना है और न्याय पर विश्वास, भरोसा भारत की जनता का अत्यधिक है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि नए दंड कानून मानवाधिकारों की रक्षा करने, न्याय प्रदायगी में तेजी लाने और दक्षता बढ़ाने के साथ ही पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आधुनिकतम प्रौद्योगिकी को अपनाने पर जोर देते हैं। साथ ही साइबर अपराध, आर्थिक और लैंगिक आधार पर हिंसा से निपटने के लिए लागू किए गए हैं। नई प्रक्रियाएं दर्शाती हैं कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का अनुसरण किया जा रहा है। हमने अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की भी समीक्षा की है और विशेष रूप से मानव अधिकार के मामले के अंदर भारत ने हमेशा मानव अधिकार को सबसे ऊपर रखा है। हम मानव अधिकार के प्रति हमेशा सचेत रहें और आप देखेंगे कि हमारे कानून में, हमारे संविधान के अंदर मानव अधिकारों के प्रति, महिला अपराधों के प्रति विशेष रूप से समय समय पर बदलती परिस्थितियों में कानून बना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में नेता और देशबंधु चितरंजन दास को उनकी जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित की। मौके पर मौजूद अन्य सांसदों और गणमान्य व्यक्तियों ने भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लोकसभा सचिवालय की ओर से देशबंधु चितरंजन दास के जीवन परिचय पर आधारित पुस्तिका की अंग्रेजी और हिंदी प्रतियां समारोह में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को भेंट की गयीं। बता दें कि देशबंधु चितरंजन दास के चित्र का अनावरण भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 12 सितंबर 1958 को संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में किया था।